شمر صبح کر چکا صحرا کے لال جب شمر صبح کر چکا صحرا کے لال صدمہ ہوا کمال محمد کیا سن کر یہ حکم حاکم مردود
गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अलहाज डॉक्टर अजहर खानी साहब से कि चंद अशआर पेश कर दें और उसके बाद मौलाना मौसूद का बयान। आप हजरात सिमट आए ताकि अभी लोग बाहर बाद में आएंगे उनके लिए जगह फराहम हो सके। नारे सलवार। अब्बास भाई की इसाले सवाब की मजलिस से आप हजरात से गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके इसाल कर दें। नारे सलवार। मौला अब्बास की रियायत से 4 मिसरे कि अब्बास वो जो साहिबे कौसर का लाल था, अब्बास वो जो साक़िए कौसर का लाल था, वो चाहता था पानी का रुतबा बढ़ा रहे। अब्बास वो जो साक़िए कौसर का लाल था, वो चाहता था पानी का रुतबा बढ़ा रहे और फेंका था उसने इसलिए चुल्लू से आपको, फेंका था उसने इसलिए चुल्लू से आपको पानी समंदरों में हमेशा भरा रहे, पानी समंदरों में हमेशा भरा रहे। 4 मिसरे और कि हक क्या है ज़हन और दिल में उतर जाना चाहिए, हक क्या है ज़हन और दिल में उतर जाना चाहिए और सदियों तक भी उसका असर जाना चाहिए। हक क्या है ज़हन और दिल में उतर जाना चाहिए, सदियों तक भी उसका असर जाना चाहिए। और तू और सवाले बैते फासिक हुसैन से, चौथा मिसरा बतौर खास कि तू और सवाले बैते फासिक हुसैन से मर जाना के पिसर तुझे मर जाना चाहिए, मर जाना के पिसर तुझे मर जाना चाहिए। नारे सलवात। शहर और इसकी अदीब देखेंगे कि एक फिजा एक अबूजर शान एक किरदार दो, एक फिजा एक अबूजर शान एक किरदार दो, इश्क हैदर आईना है आईना बरदार दो, इश्क हैदर आईना है आईना बरदार दो। फातह खैबर है एक फातह नहरे फुरात। देखिए दूसरा मिसरा कि फातह खैबर है एक फातह नहरे फुरात, एक ही घर में हुए हैं हैदरे करार दो। फातह खैबर है एक फातह नहरे फुरात, एक ही घर में हुए हैं हैदरे करार दो। और हाथ में जुल्फे नबूवत अख्तियारे खुल्द भी, मंगल कशी देखे शेर हुजूर कि हाथ में जुल्फे नबूवत अख्तियारे खुल्द भी, दोषे पैगंबर पे है एक शान के सरदार दो, दोषे पैगंबर पे है एक शान के सरदार दो। और एक ही हमले में 2 करती है नस्लें देखकर, एक ही हमले में 2 करती है नस्लें देखकर, जुल्फ़िकारे हक नहीं करती किसी पर वार दो, जुल्फ़िकारे हक नहीं करती किसी पर वार दो। और चैन से एक वाक़या ये भी, चैन से सोए कोई और खौफ से रोए कोई, चैन से सोए कोई और खौफ से रोए कोई, एक शबे हिजरत के अफसाने के है किरदार दो,
ایک شبے ہجرت کے افسانے کے ہے کردار دو، اور بعد پیغمبر بطور خواجہ شیخ کی بعد پیغمبر علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر، بعد پیغمبر علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر ہر نظر کہنے لگی ہے احمد مختار دو، ہر نظر کہنے لگی ہے احمد مختار دو، خود کو جھولے سے گرا کر کہہ رہا تھا بے زباں. اس میں دیکھیں دوسرے مصرے میں کیا حسن ہے لطیف کا، کہ خود کو جھولے سے گرا کر کہہ رہا تھا بے زبان میں بھی جاؤں گا بابا مجھے تلوار دو، رن میں بھی جاؤں گا. خود کو جھولے سے گرا کر، خود کو جھولے سے گرا کر کہہ رہا تھا بے زبان رن میں بھی جاؤں گا بابا مجھے تلوار دو. اور ایک شمشیر تبسم، ایک شمشیر نظر، ایک شمشیر تبسم، ایک شمشیر نظر لے کے نکلے اصغر و عباس یہ ہتھیار دو، لے کے نکلے اصغر و عباس یہ ہتھیار دو. اسے بطور خواجہ حضرات ہے کہ کربلا کے بعد، کربلا کے بعد شان زینب و سجاد دیکھ، کربلا کے بعد شان زینب و سجاد دیکھ، قافلہ ہے ایک لیکن قافلہ سالار دو. کربلا کے بعد شان زینب و سجاد دیکھ، قافلہ ہے ایک لیکن قافلہ سالار دو. اور ہم زمین پر منتظر عیسیٰ فلک پر منتظر، ہم زمین پر منتظر عیسیٰ فلک پر منتظر، ایک مسیحا غیب کے پردے میں ہے بیمار دو، ایک مسیحا غیب کے پردے میں ہے بیمار دو. سب پہ اظہر چاہیے رکھنا جہاں میں ایک نظر، سب پہ اظہر چاہیے رکھنا جہاں میں ایک نظر، یوں تو آنکھیں حق نے بخشی ہے پے دیدار دو. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اہل النبوہ، اہل بیت النبوہ. سپہ سالار 2، یہ ماہ جمادی الاولیٰ، اس میں سپہ سالار 2 کا ذکر ڈاکٹر حاجی صاحب نے کیا. تو 5 جمادی الاولیٰ کو ثانی زہرا حضرت جنت سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد، اور 15 جمادی الاول کو ہمارے چوتھے ماہ کی تاریخ ولادت باعثادت ہے. یہ اس مہینے میں دونوں سپہ سالار کی ولادت ہوئی کا مہینہ ہے. اور پھر آپ جیسا کہ جانتے ہیں روایات کے مطابق 13، 14، 15 کو جناب معصوم عالم کی زیارت پڑھنے کے لیے مفاتیح الجلال میں علامہ شیخ عباس قمی نے تحریر فرمایا ہے کہ 75 دن کے روایات سے ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن شہادت واقع ہوئی ہے. تو 13، 14، 15 تینوں دن زیارت معصوم عالم بجا لائے، اور 15 کو چوتھے ماہ کی بھی زیارت. اور بروایت دیگر 95 دن کے حساب سے 3 جمادی ثانی انشاءاللہ 17 جنوری بروز اتوار پڑے گا، چاند کے اوپر ہے. تو اس سلسلے میں 2 دور عزائے فاطمیہ کا، ایک کل شب سے شروع ہوگا بستی بستی 3 دن میں، 2 دن غم کی مجلس، 1 دن ولادت کا جشن چوتھے ماہ کی. پھر 3 جمادی ثانی کے قریب 1، 2، 3 دوسرا دور عزائے معصوم عالم کا دور جاری رہے گا. میں متاثر ہو کر کے چلا آیا یہاں پر، قریب تقریباً پوری رات بیدار رہ کر کے کچھ حصے سویا ہوں گا. جناب معصوم عالم کے فضائل اور مسائل پورا ذہن میں گردش کرتا رہا. اسی بات سے متاثر ہو کر کے میں یہاں آیا. مولوی صاحب کے پہلے میں جسارت کر رہا ہوں، چونکہ ایک زن مومنہ کا انتقال ہوا تھا. ہاں، تو لہٰذا ان کو بھی فرصت دینے کی غرض سے ان سے ملاقات کی. بس اتنی زحمت کے بعد میں
ज़हीरुल इस्लाम काजी जनाब मौलाना अलहाज हसन मेहदी साहब टूला वाई मस्जिद अली से गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार नारे सलवात। परवरदिगार आलम अपने कलाम बलागत निज़ाम में अहले ईमान के बारे में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा। अरबी ज़बान में इन्नमा का इस्तेमाल उस मौके पर किया जाता है कि जहाँ पर किसी और बात की गुंजाइश न हो। कुरान मजीद में बहुत सी आयतें हैं कि जहाँ पर लफ्ज़ इन्नमा का इस्तेमाल हुआ, आयत ततीर बराबर आप पढ़ाई करते हैं तो तर्जुमा ये होता है फ़ारसी में जुज़ी नैश, इसका उर्दू हुआ
सिवाय इसके कुछ नहीं है। और अरबी ज़बान इन्नमा, तो मैं समझता हूँ कि इसका आसान तर्जुमा मेरी नज़र में अगर है तो ये है कि बस तमाम अहले ईमान आपस में भाई भाई। सलवात मोहम्मद वाले इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। इन्नमल मोमिनुन इख्वा, तमाम अहले ईमान आपस में भाई भाई है। ईशा करीमा की छाँव में अहादीस आबाद दे रहे हैं कि मोमिन की जो मिसाल है कल आज़ा की तरह। क्या मतलब हुआ? यानी अगर एक उंगली को तकलीफ पहुंच जाए तो पूरे बदन में तकलीफ होती है। इसी तरह अगर किसी मोमिन को तकलीफ पहुंच जाए तो हर मोमिन को उसका असर लेना चाहिए कि मोमिन परेशान है, इतना भाई भाई है। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, ऐ ईमान वालों, तो अपने भाइयों के दरमियान, अब अल्लाह ने कहता मोमिन के दरमियान, पहले ऐलान किया अहले ईमान आपस में भाई भाई। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो तुम इस्लाह करते रहो अपने भाइयों के दरमियान। वत्तकुल्लाह, इतना ख्याल रखना कि दिल में अल्लाह का खौफ हो। क्या फ़ायदा होगा, क्या समरा मिलेगा? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। हर लफ्ज़ की शरात मुमकिन नहीं है, वक्त भी बहुत कम है, लेकिन एक मसला ये भी है कि बुलाने वाले का भी हौसला होता है। और मैं भी 20 साल के बाद यहाँ बादिरपुर जवार में रह के हाजिर हुआ हूँ। ये मस्जिद जो बनी है बुनियाद मैंने रखी थी। हमारे पाँच कर्रा साहब मरहूम हो गए, उन्होंने तकरीर किया था, मैंने बुनियाद रखी थी। आपने बड़ा जोर दिया हमारे सईद साहब कि बुनियाद आप ही को रखना है। अब किस बुनियाद पर कह रहे थे ये नहीं मानता। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। ईमान आपस में भाई भाई। तो सारे बातों को समेटते हुए अर्ज़ कर दूं, परवरदिगार आलम, तूने नमाज का हुक्म दिया, बार बार आयतों में ऐलान, 1 2 नहीं 55 या 64 आयतों में नमाज का हुक्म। लेकिन कोई ऐसा आईना भी तो हो कि जिससे हम देखें, पहचाने कि नमाज कैसे पढ़ें, कितनी पढ़ें। इसके पहले मैंने कभी तकरीर में कहा था कि परवरदिगार आलम जब नमाज का हुक्म दिया था तो अत्तेदाद जगह बता देता। सुबह की पढ़ना 2 रकत पढ़ना, जोहर की पढ़ना 4 रकत पढ़ना, असर की पढ़ना तो 4 रकत पढ़ना, मगरिब की 3, इशा की 4, नवाफिल ऐसे बता देता। कहा अगर मैं बता देता तो लोग कहते कुरान काफी है। मैं नहीं बताऊंगा। कुरान में जिक्र है नमाज का, अहकाम इलाही का, लेकिन बताने वाले अहले बैत होंगे, मुसले आदम उनके अहले बैत। तो अगर आज कुरान है तो उसकी फर्दानी मौजूद है, एक अलग मौजूद है। तो आईना हमको अल्लाह ने बता दिया कि मुसले आदम की भी आवाज़ मुझी, सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे पढ़ते हुए देख रहे हो। तो कुरान नमाज बता रहा है, अहले बैत नमाज की तस्वीर दिखा रहे हैं। जितने अहकाम मिलेंगे उसकी नज़ीर मौजूद है। का परवरदिगार आलम जब ऐलान कर दिया कि अहले ईमान आपस में भाई भाई हैं, तो आईने अखुवत भी होना चाहिए। एक भाई अपने भाई के साथ कैसे रहे, आईना होना चाहिए ना, कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पर देखा, पहली मंजिल में 2 भाई नजर आए, एक हाबिल और एक काबिल। कैसे रहे? कहने ने खबरदार ऐसे मत रहना। हाबिल मकतूल है, काबिल कातिल है। मैं मकतब में गया, एक बच्चे से पूछा बताओ हाबिल काबिल कौन थे? कहा दोनों भाई थे। तो किसने किसको मारा? तो कभी हाबिल गए, कभी काबिल, कभी हाबिल, कभी काबिल। तो मैंने कहा आसान पता है, जिसमें बड़ा काफ लगा वही कातिल है।
सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बस ऐसे नहीं, फिर आगे बढ़ा बंदर। अल्लाह आईने अखुवत पेश कर रहा है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अहले ईमान आपस में भाई भाई हैं। मामूली मर्तबा नहीं अहले ईमान का। कुरान मजीद के दामन में आप गौर से पढ़िए तो आपको ये मिलेगा कि जहाँ पर अल्लाह ने यहूदियों से कुछ कहना चाहा, नसरानियों से कहना चाहा, काफिरों से कहना चाहा, तो अल्लाह ने अपने हबीब से कहा आप कह दीजिए, आप कह दीजिए। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, आप कह जाए यहूदियों। कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह जाए काफिरों, आप कह दीजिए। लेकिन जहाँ अहले ईमान की बारी आई तो अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये मर्तबा अहले ईमान का है। काफिर से कहा, यहूदी से, नसरानी से, मेरे हबीब आप कह दीजिए। और जब ईमान वालों से कहना हुआ तो खुद कह रहा है। तो परवरदिगार ऐसा क्यों? कौन काफिरों के मुंह लगे? सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद आपके। तो ये ईमान वालों का मर्तबा दर्जा बुलंदी है। अभी आपके सामने अर्ज़ करूंगा, यही पर अर्ज़ करूंगा। अहले ईमान का मजमा है, मोमिन का मजमा है। मैं आईने अखुवत बाद में पेश करूंगा। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करते रहो। ये अमर का सेगा है, करते रहो, बराबर करते रहो। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करते रहो। अब इस्लाह कैसे करें? हम आपसे मुमकिन नहीं है कि जैसी इस्लाह अहले बैत रसूल ने किया है, जैसी इस्लाह हमारे इमामों ने की है। लेकिन मोमिन का मर्तबा पहचानिए। जितने लोग बैठे मेरे सामने सबको मालूम होगा कि इमाम के सहाबी, इमाम के चाहने वाले, इमाम के नक्श कदम पर चलने वाले जनाब अली इब्ने यक़तीन, ये नाम पढ़ा, हमारे सब लोग जान गए। जो भाई नहीं जाने को पहचानवा दूं, ये कौन है इब्ने यक़तीन? ऐसी जहानत थी, ऐसा तक़वा, ऐसा किरदार, ऐसी सीरत कि हारून जैसे बादशाह के दरबार में आप ओहदे विज़ारत पर पाए थे। हम तो बादशाही कहेंगे, ओहदे विज़ारत पर, मामूली दर्जा नहीं इब्ने यक़तीन का। अब ये दर्जा मिला, ये मनसब मिला, कैसे कहते हैं कि वाक़यात हैं। अगर मैं उसी को जिक्र करूँ तो मज़े तमाम हो जाएगी। मुझे इस्लाह के बारे में जिक्र करना है। अली इब्ने यक़तीन आए, दरबार से घर में आए, कुछ आराम कर रहे थे। इतने में इब्राहिम जम्माल, ये ऊँट चराने वाले, अरे जमल माने कौन नहीं जानता, तो जम्माल ऊँट चराने वाला ये आ गया मिलने के लिए, कूफे के रहने वाला। तो उसने ये कहा कि मेरे इमाम तो मदीने में हैं, तो यहीं चल के इमाम के सहाबी से, इमाम के शागिर्द से मुलाकात कर लूँ, सवाब मिल जाएगा। वो बेचारा आया, दरवाजे पर पहुंचा, दस्तुल बाब किया, लेकिन खुलासा मुलाकात नहीं, कब मुलाकात का मौका नहीं है। वो कबीला खातिर होकर घर वापस आ गया। तो वो ओहदेदार हैं, मनसब वाले हैं, ओहदे वजारत पर फायद हैं, मामूली दर्जा नहीं, और बड़े ही दौलतमंद भी थे, बागात के मालिक थे, गुलामों की भीड़ थी। चला गया वापस। अब ये अली इब्ने यक़तीन हज बैतुल्लाह को आए। हज करने के बाद इमाम की देवड़ी पर चले तो इमाम बराबर इब्ने यक़तीन का इस्तकबाल फरमाते थे। मेरा दोस्त आ, मेरा चाहने वाला। लेकिन आज की हालत ये है, जब पहुंचे दरवाजे पर, बैतुल शरफ पर आ गए, दस्तुल बाब किया, जवाब आया इब्ने यक़तीन तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी बातें सामने कम आती वक्त में कर रहा हूँ, मिसाल सवाब के लिए मैं ये है। कहा कि तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते। लहजा बदला हुआ तो मेरे मौला, मेरे इमाम, वजह क्या है, सबब क्या है? इमाम ने आवाज दी, तुमसे मिलने इब्राहिम जम्माल आया था, तुमने मुलाकात नहीं की।
लिहाजा तुम मुझसे नहीं मिल सकते जब तक कि इब्राहिम से जाके माफी न मांगो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दर्जा है मर्द मोमिन का? मौला वो कूफे में है और मदीने में हूँ, बगैर मिले नहीं जाऊंगा। इमाम ने फरमाया नहीं, मुलाकात नहीं कर सकते, पहले इब्राहिम माफी मांगो। का कूफा जाऊंगा, कभी बैरून मदीना चले जाओ, तुम्हें सवारी मिलेगी। इमाम बैतुल शरफ में है और ऐलान फरमाते बाहर जाओ बैरून मदीना, सवारी मिलेगी, निगाह देख रही है, नहीं भी तुम्हारा कह दिया तो हो गया इतना। इब्राहिम से मिलने के लिए इब्ने अकील आए, बैठे थे सवारी, दम जदन में पहुंचा दिया इब्राहिम जमाल दरवाजे पर। दखुल बात किया, उसने आवाज दिया कौन? तो मैं अली इब्ने अकील। तो ये कैसे हो सकता है? मैं उनसे मिलने गया था और मुलाकात नहीं की। वो मुझ गरीब के दरवाजे पर इतना बड़ा ओहदेदार, ये मनसब वाला यहाँ कैसे आ सकता है? कहा नहीं, मामला बड़ा नाजुक है, इब्राहिम आ जाओ, घर के बाहर आ जाओ। अब वो परेशान, इब्ने अकील दरवाजे पर, हम मिलने गए थे, मुलाकात नहीं की। दरवाजा खोला, बाहर आ गए, लेकिन खड़े, तो मामला क्या है? इब्ने अकील ने कहा कि मैं इमाम से मिलने गया, लेकिन जवाब ये मिला कि जब तक इब्राहिम से माफी नहीं मांग लोगे तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते। एक एक बात में नसीहत है, दर्स है, नहीं मिल सकते। मैं आया हूं, तुम मुझसे मिलने आए थे, मुलाकात नहीं की, इमाम को ये बात नापसंद आई है तो मुझे माफ कर दो। इब्राहिम ने हाथ उठाया, परवरदिगार मैं माफ करता हूं, तू भी इनको माफ कर दे। बात खत्म हो गई ना? ने कहा ऐसे नहीं, मैं जमीन पर लेट जाता हूं और अपना पांव मेरे रुखसार पर रख दो, वही ताकत से दबा दो, बदन में कपकपी पैदा हो गई। तो ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा ओहदेदार। जवाब दिया, ओहदा अपनी जगह पर, इमाम से मिलने का मौका है, ओहदा कोई चीज नहीं है। तुम मेरे रुखसार पांव रख के दबा दो। इसरार किया तो पांव उसका कांपता हुआ बढ़ा, रुखसार पर रखा नहीं, पूरी ताकत से दबा दो। दबाया तो आवाज दी, मेरे मौला आप तो मदीने में हैं मगर देख रहे हैं कि मैं किस तरह से माफी मांग रहा हूँ। उठे, फिर सवारी बैठे, देखा इमाम कुछ दूर आगे बढ़ के इस्तेकबाल फरमा रहे हैं, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अस्लहू बैन अखवैकुम, अपने भाई दरमियान इस्लाह करते रहो। अब सुने, तमाम अहले ईमान का मजमा है, एक मर्द मोमिन की सारे सवाब के लिए मजलिस है। इमाम ने बिठाया और आवाज दी, इब्ने अकील एक बात सुन लो, तुम एक बात की जमानत करो तो मैं 3 बातों की जमानत करता हूं। तो मौला आप जल्दी बताइए, मुझे एक काम करना है, आप 3 काम करेंगे। कहा इतना तुम तय कर लो, कसम खा लो कि जब तुम्हारे पास कोई मर्द मोमिन आए तो उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना। तो मौला आप क्या करेंगे? मैं ऐद करता हूँ, कसम खाता हूँ, मेरे पास कोई मोमिन आएगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, एहतराम करूंगा। आप क्या करेंगे? तो सुनो, अगर तुम ये वादा करते हो कि मर्द मोमिन आएगा, एहतराम करोगे, इज्जत करोगे, तो मैं तुम्हारी 3 बातों की जमानत करता हूँ। पहली जमानत ये है कि तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं चलेगी। दूसरी जमानत ये है कि तुमको कैद खाने में नहीं डाला जाएगा। तीसरी जमानत ये है कि मुफलिसी नहीं आएगी, यानी ओहदा नहीं छिनेगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये 3 बातें ऐसी हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली, ये 3 बातें ऐसी हैं, मैं वजाहत कर दूं कि हर वक्त ये खतरा है कि ओहदा छिन जाए, हर वक्त खतरा है कैद खाने में चले जाए, हर वक्त खतरा है तलवार चले।
तीनों बातों का हर वक्त हर लम्हा खतरा। और इमाम फरमाते हैं मैं जमानत करता हूं, न तलवार चलेगी, न कैद खाने में जाओगे, न ओहदा छिनेगा, रहेंगे मदीने में, हिफाजत यहां करेंगे। वो निशान है और जमानत की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जुमला दोहरा दूं, इन तीनों से हर वक्त बिल्कुल परेशान थे इब्ने यकीन कि कब क्या हो जाए। अब कैसे रहते थे? वो समझता था इब्ने यकीन हमारे हैं, इब्ने यकीन मौला के थे। ऐसे माहौल में दरबार में रहना तो तरह तरह के दरबारी उलमा, जिनको उलमा सू कहा गया है, वो कहते हैं तुम धोखे में हो कि तुम्हारे नहीं है, वो इमाम के पास है, उनके चाहने वाले, उनके मजहब पर हैं। तो कैसी बात करते हो? जब लोग शिकायत करते हैं, जब मैं आजमाता हूं, मेरे निकलते हैं। तलवार पढ़ के हमारा रहे यहाँ पड़ रहा। ये सारी बातें सामने नहीं आती, मेरे निकलते हैं। कैसी कैसी शिकायत उलमा ने भी की, हमारे वज़रा ने भी किया, उमरा ने किया, लेकिन जब मैंने इम्तिहान लिया मेरे निकले। तो आपके दुआ से मेरे जहन में 10 मौका ऐसा है कि मैं बताता कि खतरे में थे मगर इमाम ने बचा लिया। मैं सबको छोड़ के एक मौका। इब्ने यकीन के पास गुलामों का मजमा है। गुलाम जो करीबी बिस्तर लगाता है, खाना खिलाता है, खिदमत करता है, बहुत करीबी गुलाम। किसी बात पर नाराज हुए इब्ने यकीन उसको तमाचा मार के निकाल दिया, चले जाओ यहां से। अब जाहिर बात है जब कोमू अन्नी का तमाचा लग गया, सलवात मोहम्मद वाले मोहन पर है, पढ़े उसको लेके पूरी तारीख सामने आ गई। बहरहाल वो सीधे दरबार में आया, कहा कि आप होश में आ जाइए, इब्ने यकीन आपके नहीं है, इमाम के मजहब पर है। तो कैसी बात करते हो? ऐसा था मैंने आजमाया, बराबर मेरे निकले। उसने कहा मैं उनका बहुत करीबी गुलाम, बहुत नाजुक बात है, बहुत करीबी गुलाम हूँ। बिस्तर मैं बिछाता हूँ, खाना मैं खिलाता हूँ, सारे खिदमत मैं करता हूँ। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने जो शाही जुब्बा किसी काम पर खुश होकर इब्ने यकीन को दिया था ना, कहा दिया था, कहा मेरी आंखों ने देखा, वो पहुंच गया मदीने, इमाम के पास पहुंच गया। बड़ी नाजुक बात है। तो हारून गैर में आया, क्या कहते हो? कहा हाँ दिया था ना आपने। कहा दिया था मैंने, करीबी गुलाम हूं, मैंने देखा, चला गया सामान मदीने। अब तो मान लीजिए कि आपके नहीं हैं, इमाम के मजहब के हैं। तो बुला इब्ने यकीन को, इब्ने यकीन दरबार में है। आ गए, सामने खड़े हुए, देखा गैर गजब जलाल। तो क्या बात है, परेशान क्यों है? तो कुछ नहीं, जो मैंने शाही जुब्बा दिया था वो मुझे वापस कर दो। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत नाजुक बात है, वो वापस कर दो। गुलाम कह रहा मेरे सामने वो गया मदीने, वो कह रहा ला के मुझे दिखाओ। अब तो यहाँ पर कत्ल होना है, या ओहदा छीने, या कैदखाने में जाए, तीनों बात खतरा है ना। लेकिन इब्ने यकीन ने कहा कैसी बात करते हैं, अब आपने मुझे दिया था, बड़े एहतराम से उसको रखा मैंने, बाकायदा उसको संदूक में बंद कर दिया है, उसको मुअत्तर कर दिया है, उसके बोसे भी लेता हूँ, उसकी सुबह ज़ियारत भी करता हूँ। इब्ने यकीन बयान दे रहे हैं, मैं कहूँ इब्ने यकीन आप ऐसी बात कह रहे हैं, शाही जुब्बा, उसका एहतराम, उसकी इज्जत, उसका बोसा लेना। कहा नहीं, पहले बोसा नहीं लिया था, वो इमाम के पास होके आया था। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गुलाम सही कह रहा था कि जुब्बा गया उधर, लेकिन जो इमाम के पास आया, दिरहम दिनार थे और लिबास सब रख लिया, गुरबा तकसीम किया। शाही जुब्बा जो है इत्मीनान से कुछ बढ़ा के और दिया, और कहा ताकीद कर देना इब्ने यकीन को, इसको इज्जत के साथ रखें कि ये काम आएगा, ये काम आएगा। जुमला सुने आधे घंटे के बाद एक जुमले में, गुलाम ने लिबास जाते तो देखा
आते नहीं देखा। इमाम ने जमानत की थी, मैं बचाऊंगा। कहा मैं यही पर हूं, संदूक में रखा, बुला लो। संदूक लाया गया। कहा मैंने आप खोलिए। कुछ खोला तो देखा जुब्बा मौजूद। नतीजा क्या हुआ? इब्ने एक दिन बच गए, गुलाम मारा गया। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ईमान पसंद भाई भाई है तो असलु बैना सवाइकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करते। इंसान मैंने कहा भाई नमाज पढ़िए, तो आप तो पढ़ते हैं ना, मेरी क्यों फिक्र है? अरे भाई अल्लाह ने कहा इस्लाह करो इसलिए कह रहे हैं। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईने अखुवत, एक बात रोक दिया, आईने अखुवत। देखिए अभी आपने शेर में पढ़ा, शबे हिजरत आईने अखुवत पेश किया जा रहा है। जुमला कहा पूरा जहन आपको पहुंच जाता है के ऊपर। आईने अखुवत, मुसले आदम आवाज दे रहे हैं, मेरे भाई अली मुझे उधर से खबर दी गई है कि आज की शब कुफार कुरैश अपने हाथों में नंगी शमशीर लेके आएंगे और मुझे मेरे बिस्तर ही पर कत्ल करना चाहिए। लिहाजा आप मेरे बिस्तर सो जाइए, मैं हिजरत करूं। देखिए एक भाई भाई से कहे, अब आज का भाई होता वाह ऐसे भाई हमें खतरे में डालें, आप चले जाएं। सलवात मोहम्मद वाले लोग करें। लेकिन भाई आप सो जाइए, मैं हिजरत करूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे मौला ने न तो ये कहा कि हाँ सो जाऊंगा, न तो ये कहा कि नहीं सोऊंगा। एक सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? जवाब मिला, मेरे भाई अगर सो जाओगे तो जान बचेगी। हम लोग कहते हैं तलवारों की छांव में अली को नींद कैसे आ गई? अरे जागते सोना चाहिए था। कहा नहीं, अगर मैं जागता रहता तो इताअत नहीं होती। रसूल ने फरमाया जब सो जाओगे तो मेरी जान बचेगी। रसूल है गरज के मौलाए कायनात को बिस्तर मिला, सारा मजमा। अच्छा जो लोग हज की उम्रा की अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत लोग गए हैं, बहुत हाजिर मेरे सामने हैं। ये मैंने कहा और आपका जहन पहुंच गया जहाँ पर वाक़या होगा। ये सही का जो मैदान है उसके आगे बढ़ेंगे आप तो वहाँ पर एक है मौलिद रसूल कहा जाता था, मकान रसूल। अब उसका नाम रख दिया मकतबा मक्का मुकर्रमा। ऐसा ऐलान किया कि लाइट का सुर्ख लगा दिया है कि रात को जलती बताती है ये मकतबा मक्का है। पहले मौलद कहते थे, मकान यानी उसी जगह का वाक़या जो आपको पेश कर रहा हूँ। जो लोग हज किए हमरा किए उनका ध्यान पहुंच जाएगा, थोड़ा लुत्फ आएगा। सलवात मोहम्मद वाले कुफार कुरैश रात भर जागते रहे, तलवारों को सैकल किया जा रहा है, हमें ऐसा ऐसा करना है। मौलाए कायनात को बिस्तर मिला, मुसले आदम आगे बढ़े, घर का मुहासरा है, दीवार बनी है, तमाम दुश्मन बड़े बड़े पहलवान सूरमा चावल वो सब घेरे हुए हैं। उसके दरमियान से निकल गए। कैसे निकल गए? सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत पढ़ते निकल गए, किसी ने देखा ही नहीं। दरमियान से हुज्जत निकल गई और देखा नहीं। दरमियान में हुज्जत है, नहीं देख रहे। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला सो रहे, कहरी नहीं सो रहे। और इधर कुफार कुरैश अपने हाथों में नंगी शमशीर लिए। देखिए मैं बाजीपुर में आया हूँ, अगर हमारे मेज़बान साहब ने कहा कि जनाब आपको रात में रुकना है और ये कमरा है यहाँ पर आप सो जाइएगा, तो उस कमरे में कुछ खुदा न खास्ता शक्लें आती हैं, डरावनी शक्लें, हमला हो रहा है, लेकिन आपने बताया नहीं तो मैं चैन सो जाऊंगा। अच्छा मुझे ने कुछ नहीं होता, आपने मुझे रुखसत किया कहकर जनाब सोइए अब हम जा रहे हैं, आप सोइए, मगर आधी रात के बाद
बराबर यहाँ शक्लें आएंगी, डरावनी शक्लें आएंगी और आपके पास आएंगी, आपको मारना भी चाहेंगी। वो जिन्नात भी होंगे, शयातीन भी होंगे। कुछ होता नहीं था, लेकिन जब बता दिया तो सारी रात इंतजार में गुजर गई, नहीं सो सकते। क्या है शान मेरे मौला की कि बताया जा रहा है कि आज ऐसा ऐसा होगा, कुफार आएंगे, तलवार लेके आएंगे, कत्ल करना चाहेंगे। ऐसे माहौल में सो जाना ये सबके बस की बात नहीं। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मौला सो रहे हैं। क्या बड़ी तारीफ है, कम लोग बयान करते सवेर। अंबिया में भी एक ऐलान होने लगा, फरिश्तों में ऐलान होने लगा। उधर अल्लाह भी मुबाहात कर रहा है, फरिश्तों को भाई भाई बना रहा है, ये इनके भाई उनके भाई। और उसके बाद जब कहा कि जरा झुक के देखो जमीन की तरफ, एक भाई अपनी जान भाई को कुर्बान कर रहा है, क्या तुम्हें कोई भाई ऐसा है जो ऐसा कर दे? कहा नहीं, ये तो नहीं करेंगे, हम ज्यादा जिंदा रहेंगे ताकि तेरी इबादत ज्यादा करें। नियत अच्छी है मगर ये नहीं हो सकता हम जान कुर्बान करें। कहा झुक के देखो, एक भाई अपनी जान भाई को कुर्बान कर रहा है। पहले ईमान आपस में भाई भाई है, एक भाई अपने भाई के साथ कैसे रहे ये आईना पेश किया जा रहा है। जुमला कह दो और सामने की बात भी है। एक बार सलवात पढ़ के आमादा हो जाए। क्या मौला सो रहे, मौला को सुना दिया गया। आयतुल कुर्सी सबको याद है और नहीं याद है तो याद कर लीजिए। नमाज वहशत बगैर इसके नहीं होती और हर नमाज में नए सूरा याद है, कुल अल्लाह उसका नाय बन जाए। इसमें न्याय वो कुछ नहीं। आयतुल कुर्सी तातुल कुर्सी कुल 3 आयतों भला मजमुआ आयतुल कुर्सी, ये तो याद सबको रखना चाहिए, बिल्कुल याद करना चाहिए। याद रखिए, तय कर लीजिए। और अगर आज हम नमाज बचत पढ़ेंगे तो कल हमारी पढ़ी जाएगी, हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ी जाएगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले तो बस ये आयतुल कुर्सी। पहला जुमला क्या है? अल्लाह ला इलाहा ला ताखुज़ुहु ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। देखिए आज इंशाअल्लाह सुन रहे हैं आयतुल कुर्सी का जुमला, वजाहत आज होगी। सिनतुन माने सब, नौम माने सब जानते हैं, नौम माने कौन नहीं जानेगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले होता है, सब जानते हैं। सुबह सवेरे आँख खुलती इसी पर है तो नौम सब जानते, सिनतुन नहीं जानते। सिनतुन नहीं जाने बताना है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह की शान ये है न वो सोता है। अब सिनतुन माने क्या हुआ? न ऊँघता है, ना उगता है ना सोता है। अब लोग कहते हैं अगर गहरी नींद नहीं सोता होगा तो कभी कभी ऊँघ जाता होगा। कहानी अल्लाह कहता मैं सोता नहीं। अरे सोने का जो मंजर है पेश कर दूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार तू सोता नहीं है, खाने में सोता नहीं। अगर सो जाऊँ सारी कायनात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कुरान की आयत भी है कि लौकाना फीहिमा आलिल्लाह फसदता, वही आलमी हो जाए, मैं सो जाऊं तो कायनात बाकी नहीं रहेगी। बहरहाल और लोगों ने सवाल किया, तब मूसा ने कहा तुमको दे बना अकीदा ईमान है। लोगों ने पूछा था तो कहा अच्छा ठीक है मूसा को समझाने के लिए ऐसा करो आप 2 रात जाग जाइए। 2 रात जाग गए, बराबर जागे। फिर तीसरा दिन आया तो दोनों हाथ में आईना दे दिया, इधर भी आईना इधर आईना। कहा मूसा इन दोनों आईने की हिफाजत करना, खबरदार टूटने न पाए, ये आईना बचाना। खैर बोलिए बैठे रहे यहाँ तक कि सिनतुन की मंजिल आई। झोंका आया, टकराया, टूट गया। तो मूसा क्या हुआ? ये तो टूट गया। तो क्यों टूट गया? झोंका गया ना, मैं सोता नहीं। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जुमला सुनिए आप बदला। अब देखिए मेरा मौला सो रहा है। जनाब फिजा से पूछा गया, ऐ फिजा बताओ मौला की शान क्या है, तुम करीब हो। तो पूछा कि एक बात बता दो, मैं तफसील के साथ बयान करूं या इख्तिसार के साथ? कहा नहीं फिजा, जितने कम लफ्जों में मुमकिन हो बताओ केले की शान क्या है।
अब ये खालिक नहीं बलागा की कनीज लफ्ज़ समेटा। तो सुनो मेरे मौला की शान, न तो मैंने अपने मौला के वास्ते दिन में खाना पकाया और न रात को बिस्तर बिछाया। अब ये दो जुमला है, मौला की शान निखर रही है। कभी सोए नहीं, रोजा रखा, न दिन में खाना पकाया न रात को बिस्तर बिछाया, कभी सोए नहीं। अल्लाह क्या कहता है, मेरी शान ये कि मैं सोता नहीं। अब कहा जाए मंदिर सलवात मोहम्मद वाले फैसला करे मौला भी नहीं सोते, तो अगर नुसैरी खुदा कहे तो क्या गलत कहे। अल्लाह की शान ये तो है ना, वो सोता नहीं है, उगता नहीं है। और फिजा इनके लिए कहने कभी सोए नहीं तो मानो खुदा। तो आज शबे हिजरत रसूल ने कहा, या अली खुदा के लिए सो जाओ। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला ने सो करके अल्लाह की तौहीद बचाई है, सो करके इस्लाम बचाया है, सो के रसूल की जान बचाई है। जमाना पहचाने इमामत की शान। इमामत अगर सो जाए इस्लाम बचता है, तौहीद बचती है, रसूल की जान बचती है। अगर इमामत कोई जाग रही हो क्या हो, बड़ा मौला सो रहे। कहा कि अल्लाह सोता नहीं, सुला दिए गए ना। कहा नहीं, दूसरी बात सुनिए, अब मुझसे कुछ बहस हुई है। या मद्रास में मुझे पता नहीं था, कौन सामने चले गए और कहा देखिए जनाब आपको समंदर टहलाना है, तो मौजें उठ रही थी। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह। तो कहते क्या मेरे मौला अली की शान है। मैं समझ गया कि है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं समझ गया तो क्या मेरे मौला अली की शान है। जब बात होने लगी तो मैं मुतवज्जे हो गया और पता लगा भाई क्या अकीदा ऐसा रखते का बिल्कुल होना ही चाहिए। और हमारी बहस हुई, जब बहस हुई तो सभी हिजरती काम आई। बहस बहुत ही बहस हुई। कहा तक कहा देखिए आप लोग बराबर उठते बैठते सोते जागते, सफर में हजर में बीमारी में सेहत में हर मौका हर लम्हा ये अली कहते हैं। ये कहना बता रहा अली हर जगह है, अल्लाह की शान हर जगह है, वो है अली हर जगह है। ये सब बराबर हो कहता रहा अल्लाह की शान। आप कहते हैं आपका या अली हर मौके पर कहना बता रहा है, फजा में आली, हवा में आली, हर मौके पर आली, घर में आली, मैदान में आली, वही शान तो ये है ना। तो हमने कहा देखिए बहुत सी बातें करते करते आखिर जब मैंने कहा इसीलिए मौला अली को शबे हिजरत सुला दिया गया। अल्लाह वजह सोता नहीं है। अल्लाह मौला नवाज दिए जमाने वालों, मैं सो के बता रहा हूँ, खुदा नहीं खुदा का बंदा। एक बार सलवात आवाज करो तो आगे बयान। बहुत सी बातों को छोड़ते हुए सारा कुफ्फार का मजमा घर का मुहासरा किए हुए, तलवार लिए हुए, रात भर तैयारी, एक सोने वाला सो रहा है। कैसा भी बहादुर हो, कैसा सुरमा हो, लेकिन जब सो के उठता है बदन में ज़ौफ़ का एहसास होता है। उठेगा, जमाई लेगा, सोने वाला सो रहा है, ये सब जाग रहे तैयारी में। यहाँ तक के सफेद सहन मुदार सारा मजमा मिल के चला। और मिल के जब चला, इधर मौला के चेहरे से चादर सरकी, उधर सारा दुश्मन जो है उसके पांव पीछे सरके। मौला के सर पे चादर सरकी, इनके पांव पीछे सरके। घबरा के कहा याद आपसे कोई मतलब नहीं। अरे मैंने घबरा क्यों गए, सो के उठे हैं, कमजोरी का एहसास है, ज़ौफ़ है, बड़ो बढ़ के कत्ल कर दो। कि तो आप रह के कह रहे हैं, दूर रह के कह रहे हैं ना, हमसे पूछो, हम तो करीब थे। तो आप ही बता दीजिए। कहा जब अली उठे हैं तो एक एक अदा अली की जुल्फ़िकार का काम कर रही थी। अगर कोई जंगल का रास्ता तय कर रहा हो और अचानक सामने शेर आ जाए
तो मैं तो जुमला कहता हूँ, उसको हमला नहीं करना पड़ेगा, बगैर हमला किए उसको देखते दम निकल जाएगा। ये जंगल के शेर की हैबत है तो खुदा का शेर उठ के बैठा। करत के जवाब भी दिया, क्या मेरे हवाले कर गए थे? रसूल कहाँ गए? अब ये मजमा जो है दान मोहतरम पता होता नहीं पूछ रहे थे, वो देखा कि बस गनीमत इसी में है कि बाद में लगा दो भाग चलो। पता होता नहीं पूछ रहे, बाद में लगा दो भाग चलो। उठ के बैठे सारा मजमा बेताब से जुमला दोहरा दो, जो है लोग किए उमरा किए, जो नहीं किए अल्लाह ने पहुंचाए। जो मौलद रसूल है, मकान रसूल जो मक्तब मकमा कहा जाता है, वहां से सारा मजमा चला। अब हमवार हो गया है, पहले हमवार नहीं था। 20 किलोमीटर का फासला गार सौर, एक पहाड़ फिर दूसरा पहाड़, उसके अंदर गार, वहां मुर्सले आजम गए, जाके वहां पर आप छुप गए। ये मजमा चला, कैसा जमाना था, क्या माहौल था। शोराए कराम अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बैठे हैं, तो मैं इसकी वजाहत शहरी में कह दूं, ऊंचा नीचा नीचा ऊंचा, कितनी ना हमवार है दुनिया। ये माहौल था। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है ये माहौल। ऐसा रास्ता मुर्सले आजम तय करते हुए आगे बढ़े। ऐलान कर दिया था सरे शाम, खबरदार आज कोई घर से बाहर ना निकले। आज मेरे दुश्मन निकलेंगे, मेरे कातिल लोग निकलेंगे, कुफार घर से बाहर आएंगे तलवार लेकर। खबरदार कोई घर से बाहर ना निकले। मौला को सुना दिया हुजरे में, ऐलान कर दिया कोई बाहर ना निकले। अब अगर किसी की आहट मिले जाते जाते तो कहेंगे ना मैं समझा उसमें से कोई आ रहा। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। तारीख आपके पैसे नजर मुर्सले आजम ये रास्ता तय कर गए। सारा मजमा चला, जुमला सुनिएगा। मजमा चला, ऐसा क़याफ़ा शनास मजमा, नक्शे कदम को देख के पहचान गए, इधर से गए इधर से गए। जबकि पहाड़ वाला समा है, मगर वो धरा भी देगा का इधर गए, ये नक्श बता रहा इधर गए। वो 20 किलोमीटर देखते 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 पहुंच गए। पहाड़ तक गए, अब वहां नक्श नहीं मिल रहा है, कहा लगता है पहाड़ के उधर गए। वो पूरा पहाड़ पार किया। अब तो पहला पहाड़ जो है हुकूमत ने एकदम काट के बराबर कर दिया। मैं जब गया तो वो बहुत करीब जाके ज़्यादा पढ़ाई थी। करस के उधर उतरे, फिर दूसरा पहाड़ आया, कहाँ पहुंच गए। सारा मजमा गया, वहाँ अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। वो इंतजाम सब जानते, बच्चे बच्चे जानते हैं। मकली हुक्म दिया जाला तंदे, कबूतर ने आशाना लगा दिया। अब ये सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब इसमें गए होते, जुमला सुनेगा तारीखी बात अब करता हूँ, इसमें गए होते तो ये मकड़ी का जाला न होता, ये कबूतर आशाने न बैठा होता। तो कहा हाँ बात तो सही है, अगर गए होते तो ऐसा जरूर होता। लिहाजा इसमें नहीं, जैसे वापस होना शुरू किया वैसे रोने की आवाज आई है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं मिले रसूल, पूरी तकरीर का खुलासा मैं कहता हूं, नहीं मिलेंगे मुर्सले आजम। तो क्यों नहीं मिलेंगे? वजह क्या है? नक्शे कदम मिल गया, रास्ता मिला, आगे बढ़ गए, गार पे पहुंच गए, नहीं मिले रसूल। क्यों नहीं मिले रसूल? बात यह है वो मजमा अली को छोड़ के नबी को ढूंढ रहा था। नहीं मिलेंगे नबी। अगर नबी तक पहुंचना है पहले अली को तलाश करो, अली मिलेंगे तो नबी मिल जाएंगे, नबी मिलेंगे तो खुदा मिल जाएगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा भी तरीका है, तरीका रहा, मैं कहता भी उलमा ज़ाकिरीन से कि नमाज के वक्त में मस्जिद ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं 20 साल के बाद आया भी, बानी मस्जिद का हौसला देखते हुए थोड़ा मैं रुक गया ताकि वो भी अदा हो जाए, फिर आगे बयान करना। एक ये आयने अख़ुवत, दूसरा आयने अख़ुवत आप सुनिए। और चूंकि मरहूम का नाम भी अब्बास हुसैन है तो दूसरा मैं आईना पेश करूं, आईने अख़ुवत। देखिए लिखने में गलती हुई है, जो काला था ये होना चाहिए था, ये तो दिखाई नहीं पड़ता, वो नहीं दिखाई पड़ता, काम चल जाता। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है।
तो बहरहाल दूसरा आईने अखुवत हजरत अब्बास अलमदार। देखो एक भाई अपने भाई के साथ कैसे रहे, मौला अब्बास बता रहे हैं। और ऐसा भाई कि भाई होते हुए भाई नहीं कहा, हमेशा आका कहा। कैसा कैसा मौका सामने आया है। तो मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करूं कि किस तरह से साथ दिया है मौला अब्बास ने मौला हुसैन का। एक भाई अपने भाई के साथ कैसे रहे। इन्नमल मोमिनून इख्वा, इसमें कोई शक नहीं कि बस तमाम अहले ईमान आपस में भाई भाई है। आईने अखुवत आपने पहला सुना, और उसी अली का शहजादा ये जो बता रहा कि देखो भाई अपने भाई के साथ कैसे रहे। तो कहाँ कहाँ से करूँगा, बस एक मौका। मौला हुसैन आमादा हुए, अब्बास की नजर पड़ी, आका क्या इरादा है। तो मेरे अब्बास मुझको दरबार में बुलाया गया है, दरबार में जा रहा। मौला अब्बास आगे बढ़े, मेरे आका क्या आप तन्हा चले जाएंगे, मैं साथ चलूंगा। कहने मेरे अब्बास उधर से मुमानियत है कि आप किसी को लेकर ना आए, तन्हा आइएगा। देखो भाई अपने भाई के साथ कैसे रहे। तो एतराज होगा, जवाब सुन लीजिए। मौला अब्बास ने जवाब दिया, मेरे आका अगर कोई एतराज करे तो आप ये फरमा दीजिएगा कि मेरा गुलाम मेरी जूतियां उठाने के लिए आया। भाई अपने भाई के साथ कैसे रहे, मसले है मौला अब्बास, तन्हा नहीं जाने दूंगा। कहने मेरे बाप मुझे तन्हा बुलाया गया, कहा नहीं आका हो नहीं सकता। अगर आप तन्हा गए और किसी ने आपको कुछ कह दिया और बाद में मैंने सुन लिया, तो याद रखें आपका बात जिंदा नहीं रहेगा। जब ये जुमला कहा, अच्छा मेरे बात चलो। अब जब मौला अब्बास को इजाजत मिली तो 18 जवाना ने बनी हाशिम अपने हाथों में परचम लेके तैयार। अली और फातिमा का शहजादा परचम की छांव में जा रहा है। यहाँ तक कि दरबार वाली सामने आया, मौला अब्बास मुखातिब हो गए। इधर मौला अब्बास मौला हुसैन मुखातिब हुए, मौला अब्बास सामने। तो मेरे अब्बास यहाँ तक आ गए, अब मैं कहता हूँ कि यहीं पर रुक जाओ। कहने आका यहाँ नहीं रुकूंगा, आप दरबार में तन्हा जा रहे हैं, अभी जालिमों का हमला हो जाएगा तो मैं सुन नहीं सकूंगा। कहने मेरे अब्बास अब ठहर जाओ, मुझे तन्हा जाने दो। नहीं रुके, रुके कब, जब आका हुसैन ने ये फरमाया, मेरे अब्बास सुनो, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कान में आ जाए तो मेरी तरफ से इजाजत है कि दरबार में आ जाए। इसी जुमले ने अब्बास का बढ़ता कदम रोका, दरवाजे से बिल्कुल मिल के करीब हो गए। मौला हुसैन का एक कदम अंदर, एक कदम बाहर, दूसरा कदम रखना चाहते हैं। इधर सिपाही पड़े, दारुल अमारा का दरवाजा है, सिपाही पड़े, उधर से दरवाजे का हिस्सा आ रहा, इधर आ रहा। न तो मौला हुसैन ने कहा कि दरवाजा बंद न करो, कोई आएगा नहीं, न तो मौला अब्बास ने कहा कि आका दरवाजा बंद हो रहा है तो मैं कैसे आऊंगा। नहीं कहा, न तो आका हुसैन ने मना किया दरवाजा बंद करने से, न तो मौला अब्बास ने कहा कि मैं कैसे आऊंगा। दरवाजा बंद हो गया, जंजीर पर जंजीर लगा दी गई, कुफल लगा दिए गए। मौला अब्बास खड़े हैं, मेरे आका तो जाएंगे कैसे, अगर आवाज आ गई तो आप जाएंगे कैसे। जवाब मिला, चाहने वालों जब वक्त आ जाएगा तो बता दूंगा कैसे जाता हूं। मौला अब्बास ने अपना काम शोकू के दर पर रखा। इंतजार क्या है, आका ने फरमाया कि आवाज आ जाए तो आ जाना, वो हुसैन की आवाज का इंतजार है, बस ये कान लगाए सुने। मौला हुसैन से गुफ्तगू हुई और आप उठे। तारीख पूरी आप जानते हैं, बस जैसे आप उठे जालिम पुकारा, बड़े मौके से हुसैन दरबार में हैं, बढ़ के कत्ल कर दो, अब इस तरह से हमको नहीं मिल सकेंगे, बड़ा अच्छा मौका है, बढ़ के कत्ल कर दो। जैसे आका हुसैन ने ये सुना कि मुझे कत्ल करने के लिए कहा जा रहा है, आप देखें कितने शुजा है मौला हुसैन, मामूली बात नहीं है। मौला हुसैन ने गरज की आवाज दी है,
गरज के, किसमें दम है जो हुसैन को कत्ल कर दे, किसमें ताकत है, उठाए तलवार। ये आवाज अब्बास के कान से टकराई। जैसे हुसैन की आवाज अब्बास के कान से टकराई, अली के शेर ने दरवाजे पर पंजा मारा, दरवाजा दूर हो गया। अब्बास आगे बढ़े, हुसैन तक आए, ए आका बता दो किसने क्या कहा है, आका बताओ किसने क्या कहा है। अभी पूरा दरबार नोके तलवार को उठा लूंगा, आप बताए किसने क्या कहा है। तलवार की नोक पर पूरा दरबार उठा लूंगा। मैं तो कहता हूं कि हमारे आका हुसैन का कमाल था कि शुजाअत का समंदर छलक चुका था। शुजाअत के छलकते समंदर पर पहरा बिठाने वाले का नाम हुसैन है। हुसैन ने बढ़ के सीने पे हाथ रखा, नहीं मेरे पास तलवार न चला। भाई अपने भाई के साथ कैसे रहे, जब कहा तलवार न चलाना फौरन ने आने रख दिया। हुसैन वापस आ गए। 18 जवाना ने बनी हाशिम हाथों में खुला परचम लिए हुए, अली और फातिमा का शहजादा आ रहा है। बैतुल शरीफ के करीब आया, अंदर आए। सानिया ज़हरा, ज़ैनब कुबरा दुआ के वास्ते हाथ उठाए, परवरदिगार, ए मेरे माबूद, ए पालने वाले, मेरा भैया हुसैन दरबार में गया है, ए पालने वाले मेरे भैया हुसैन को सही सालिम लौटा दे। ये दुआ कर रही थी बहन, हुसैन पीछे खड़े हुए, जैसे जुमला सुना कि मेरे भैया को सही सालिम लौटा दे, हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब, अरे ये मदीना है, मदीना करबला नहीं है, जब करबला में जुदा होके तुमसे जाऊंगा, ए मेरी बहन ज़ैनब, दोबारा हुसैन तुम्हारे पास नहीं आएगा। एक भाई अपने भाई के साथ कैसे रहेगा दारो। कारवां जाने लगा, बहुत से मौका, बहुत सी मंजिलें हैं, लेकिन मैं छोड़ के अर्ज करता हूँ, बहुत सा मौका है। वो मौका आ गया कि लश्करे हुर ने बढ़ के रास्ता रोका और इतना जुर्रत कि आज लजामे फर्क रखा। मौला अब्बास साथ है, क्या आलम हुआ होगा, बस गैस में आए, अरे आका मैं क्या देख रहा हूं, इजाजत दो। लेकिन आका ने मना कर दिया, मेरे पास तलवार न चला ना, ये प्यासे मालूम हो रहे हैं, इनको पानी पिलाओ। देखिए भाई भाई से कह रहा, इतना इनकलाब पैदा हुआ, बड़ा पानी पिलाने लगे। कहाँ कहाँ से करूँ दादारो कि जब मौला अली के सर पे दरबत लगी है तो मौला हसन मौला हुसैनी नहीं आए, मौला अब्बास भी आए। और जब यहाँ आए मस्जिद कूफा में देखा कि मेरा बाबा खून में डूबा हुआ, कहा बाबा अब्बास किस दिन के लिए है, बाबा इजाजत दो। कहने मेरे लाल, मैंने आज के दिन के वास्ते खुदा से नहीं मांगा, आने वाले दिन का इंतजार करो। खामोश हो गए। मौला हसन का जनाजा उठा, तीरों की बारिश हुई, गैब में आ गए, जलाल आ गया। मौला हुसैन ने कहा नहीं मेरे भाई अब्बास, तलवार न चलाना। देखो भाई भाई की आवाज सुनते ही बहुत खामोश हो गया। सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अब जो लश्कर ने रास्ता रोका, बजाय इसके कि मौला अब्बास हमला करे, क्यों, भाई ने मना कर दिया। अब पानी पिला रहे, एक एक को पानी पिला रहे, पानी पिला रहे। चलते चलते ये काफिला अज़ादारो ज़मीने करबला पर वारिद हो गया। बस आप सुने, साले सवाब के लिए अर्ज़ करता हूँ। मरहूम का नाम भी अब्बास है, मसाहिब अब्बास पे इख्तिसार से मजलिस तमाम कर दूंगा। मजमा आ गया करबला में, बीवियां अमारी से उतरी, खैमे नस्ब कर दिए गए। जब खैमे नस्ब हो गए, उधर से हुक्मनामा आया इब्न साद का कि हुसैन से जाके कह दो खैमे तराई से हटा लिए जाए। अब जो मौला हुसैन पे हुक्मनामा आया तो आवाज दी, मेरे अब्बास, ए मेरे अब्बास, ए मेरे भाई अब्बास। करीब आ गए, आखा क्या बात है, का हुक्मनामा आया इब्न साद का कि खैमे यहाँ से हटा लिए जाए। आका अब्बास ने कुछ कहा नहीं, तलवार न्याम से निकाली और तलवार की नोक से खत खींचना शुरू किया। मेरे आका किसी में मजाल हो इस खत से कदम आगे बढ़ा दे। मेरे आका अब्बास के होते खैमा हट जाए, नहीं हो सकता।
मुमकिन नहीं है, किसी में ताकत नहीं, किसी में दम नहीं, ये खेमा कोई हटा दे। ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए कि मौला हुसैन बड़ी हैरत से अब्बास का चेहरा देख रहे और बराबर वो खत जहाँ खींचा है शेर की तरह टहल रहे, अली का शेर टहल रहा है। किसी में हिम्मत हो मजा लो, मामूली ऐलान नहीं है, उधर फौज है, ललकार रहा है अली का शहजादा, हिम्मत हो तो आ जाओ, टहल रहे हैं। जब ये समा देखा वो मौला हुसैन, जब मौला अली के सर पे दरबत लगी, तलवार निकाली, रोक दिया, रुक गए। दरबार पे पहुंच गए, मना कर दिया, रुक गए। मौला हसन का जनाजा उठा, तीरों की बारिश हुई, जला लाया, रोक दिया, रुक गए। लेकिन अब ऐसा मौका है कि लश्करे ने रास्ता रोका, रोक दिया, रुक गए। वही तो हुसैन है, वही तो अब्बास है, मगर यहाँ पर रोक नहीं रहे हैं। बस सीधे मौला हुसैन आए खैमे में, सानिए ज़हरा के पास बैठे। देखा मेरा भाई सालम में आए, बात क्या, मामला क्या है? तो भैया क्या बात है? मेरे भाई बात क्या है? ये आने का अंदाज का मेरी बहन ज़ैनब, अब्बास जलाल में आए और मेरा भाई अब्बास से कह रहा है कि खैमे तराई से नहीं हटेंगे, उधर से हुक्मनामा खैमे हटा दिए जाए। कहा कि भैया तो आप मना कर दिए, अब्बास को मना कर दीजिए, कह दीजिए खैमे हटने दो। कहा मेरी बहन ज़ैनब, मैंने बहुत रोका अपने अब्बास को, बहुत सा मौका, मेरा अब्बास रुकता गया, लेकिन आज मैं चेहरे का तेवर ऐसा देख रहा हूं, अगर आज मैंने रोका तो मेरा अब्बास रोएगा। मैं अपने अब्बास को रोता हुआ नहीं देख सकता ज़ैनब। आज ये तेवर बता रहा, अंदाज बता रहा है, अगर आज मैंने रोक दिया मेरा भाई आंसू बहा देगा, कैसे रोकूं, क्या करूं? अच्छा भैया आप जाकर इतना कह दीजिए कि ज़ैनब तुम्हारे पास आ रही है। अदाकारों जब हुसैन आए, कहा अब्बास सानिए ज़हरा ज़ैनब कुबरा आ रही है, ये सुनना था, तलवार को न्याम में रखा, वापस आए खैमे में, सानिए ज़हरा के सामने दानू तोड़ दिए। कहे शहजादी अब्बास के होते खैमे से बाहर न निकलिएगा, आपका अब्बास मौजूद है, आप खैमे से बाहर न निकलिएगा। मैं कहूँगा ए आका अब्बास, ए मौला अब्बास, आप सुन न सके कि ज़ैनब खैमे के बाहर आ रही है। हाँ यही ज़ैनब जब कैदी बनाई जाएगी, रसन बस्ता सर्व रहना, दयार बदया फिर आई जाएगी। आगे आगे मुनादी निदा देगा, या हलल कूफते व शाम, हाँ गई सवाया मिन बनाते रसूलिल्लाह। ए मेरे आका आपकी रूह कितना तड़पेगी। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुल क़लबि यनक़लिबून। बारिला वास्ता पे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जुमला हाज़रीन मजलिस के दिली मकासिद को पूरा कर। पहला जुमला अहले ईमान के जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। पहला जुमला अहले ईमान के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा। बारला जो अहले ईमान मकरूज है उनके कर्ज को अदा फरमा। बारला हमारी खताओं को माफ़ फरमा। बारला हमारी अज़ादारी को, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। बारला जुमला मोमिनीन मोमिनात की बीमारी और परेशानी को दफ़ा फरमा। बारला जुमला मोमिनीन मरहुमीन पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। बारला जुमला मकामाते मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बारला जुमला अहले ईमान को शरफ हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। बारला हमारे आखिरी ईमान के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें ईमान के आवान व अंसार में शामिल फरमा। आप हज़रात गुजारिश है कि एक बार सूरह आम, 3 बार सूरह अखलाक तिलावत फरमा कर सैयद अब्बास हुसैन मरहूम, इब्न करम हुसैन मरहूम की रूह को इशारा फरमा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।